Morning. Yes, nice. When I'm wishing you good, I also like that you also wish me good. So, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आज हम आपको मीडिया की निगाह से नहीं देख रहे हैं। आज हम आपको एक रियल ह्यूमन बीइंग के हिसाब से देख रहे हैं। प्रोफेशन मीडिया है वो अलग चीज़ है, लेकिन आज उस चीज़ को किनारे कर दीजिए, बिल्कुल किनारे कर दीजिए। आज हम यहाँ पर एक परिवार में आए हैं, भाई बहन के नाते से हम आपको देख रहे हैं, जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की विधा है। वी कॉल इट ग्लोबल फैमिली, and in global family the simple truth is that he is a father, the supreme authority, whatever name we like to give him, and we are all brothers and sisters. ये हमारा परिवार है और परिवार में आज हम आपस में कुछ दिल की बातें, कुछ जो मन में हमारे रहती हैं, उनको हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकें, बातचीत कर सकें। आज हमने उस लिए आपको निमंत्रण दिया है। The word that has been used is retreat. And the word retreat means to go back, isn't it? Go back. No one likes to go back. Everyone wants to move forward. Then why this retreat? And we call this campus Om Shanti Retreat Center. Does it mean that we are taking people behind? No. No. Just as in wars, you would have seen when the challenge outside is bigger than the strength that we have, what do? We retreat a bit, empower ourselves, and then we come back. Similarly, this retreat, it will enable us to step back, see the inside beautiful world with which we live. Outside world, no doubt, is very beautiful, but the inside world is still more beautiful and powerful than the outside world. And we have invited you as our brothers and sisters, let us come together and try to look at our beautiful inside world. Everyone has their own world, everyone. And there's so much inherent beauty in it, so much inherent power in it, which is reflected through our work or profession. And if I want to still perform better, then I need to sharpen my saw, isn't it? I need to sharpen my saw. Do we get time to sharpen it? Very rarely people say, yes, we do get time. Generally people say, who has time for it? Sister, we are so much overloaded with work, have no time for it. But we do recognize, realize, understand it is very essential. We do recognize it is essential to sharpen our soul. So today we'll be just going through the whole program, which Sister will tell you. And the program has been so designed
which takes us step by step inside and then come out with something which we feel has empowered us. And this retreat we have organized for the families, because family is an essential thing. If one person of the family moves forward and the second one's mindset is not in consonance with the other, there will be problems. And the best asset that we have as parents are our children, isn't it? इससे बढ़िया एसेट और क्या है? अपने बच्चे ही हमारे एसेट हैं, और इन बच्चों को भी अगर ऐसा एक्सपोजर मिलता है, जो उनके लिए डिफरेंट प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनके हिसाब से, उनके तरीके का, तो वही फैमिली हमारी एक बहुत अच्छी क्लोज नेट ब्यूटिफुल स्ट्रॉन्ग फैमिली बनती जाती है. एंड दिस इज द स्पेशलिटी of Brahma Kumaris. By now I'm sure all of you know about Brahma Kumaris. हाँ, सबको ब्रह्मा कुमारीज का भी तो पता लग गया. जिनको ब्रह्मा कुमारीज के बारे में पता नहीं है वो तो ज़रा हाथ खड़े करो, जिनको कुछ नहीं पता. अच्छा, आप सबको पता है. वेरी गुड. और थोड़ा सा मैं भाई सबसे निवेदन करूँगी कि जो ऑर्गेनाइजेशन की मेन हाइलाइटिंग चीज़ें हैं वो आपको बताएंगे. तो आज हम बहनें इस रिट्रीट सेंटर में बहुत प्यार से आप सब भाई बहनों का दिल से बारंबार स्वागत कर रहे हैं. आप यहाँ आए और यहाँ पर आप आज ब्रह्मा कुमारीज के पास नहीं आए हैं. कहाँ आए फिर? आप कहेंगे बहन जी आप लोग तो ब्रह्मा को वाइट क्लैड ब्रह्मा कुमारीज ही तो दिख रहे हो, तो किसके पास आए आप? मैं कहूँगी कि प्रभु स्थली है और आप अपने घर में आए हैं. ठीक है, ये आपका अपना घर है और इस घर में आपका आज आना हुआ और आप बारंबार आएं, ऐसा हम आपको अभी ही निमंत्रण देते हैं. और सारी दिन की जो आपकी रूटीन रहेगी, कैंपस ब्यूटीफुल है और आर्ट गैलरी बहुत ब्यूटीफुल है, जो 2 साल लगा करके उड़ीसा के आर्टिस्ट ने बनाई है. बहुत ब्यूटीफुल है. आर्ट गैलरी भी आप देखेंगे, सोलर सिस्टम है वो भी आप देखेंगे, और उसके अतिरिक्त पिरामिड का स्ट्रक्चर है जहाँ बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो बहुत एनर्जी फील करते हैं, अनुभव होती है. और आज मैं इतना इसको डिटेल में नहीं कहती हूँ, बट इट हैज़ अ थेरापेटिक वैल्यू. ये मेरी आंखों देखी बात है. कुछ ऐसी आत्माएं आईं जो चल भी नहीं सकती थी, व्हील चेयर पर. उनको थोड़ा मेडिटेशन का ज्ञान दिया, मेडिटेशन करने बैठी और पिरामिड में बैठी, मेडिटेशन रूम में बैठी. 1 महीना वो यहाँ रहे. 2nd 3rd डे से उसने अपने आप कदम उठाने शुरू किए. मेरे पास चल कर के दूसरी बिल्डिंग तक आई और कहा, दीदी मैं चैलेंज लेती हूँ, मैं अपने आप को यहाँ से पूरा ठीक करके जाऊँ. और जब वो यहाँ से गई अपनी फैमिली के साथ, she went walking. मैं ये नहीं कहती कि कोई उसके अंदर कोई ऐसा मैजिक है, कोई जादू है, लेकिन आज जो हमारा
सारे दिन का प्रोग्राम रहेगा, उससे ये बात ज़रूर स्पष्ट होगी, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है, हमारे अपने थिंकिंग के वर्ल्ड में है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, जो काम करती ज़रूर है। वो क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम लोग आज शेयर करेंगे। तो आप सबको मैं फिर से बहुत प्यार से, रूहानियत से इस प्रांगण में अभिनंदन और स्वागत कर रही हूँ। आपका अपना घर है, किसी प्रकार की आपको कोई तकलीफ़ हो, कुछ चीज़ चाहिए हो, कुछ भी हो, हमें ज़रूर बताइएगा और जहाँ तक हो सकेगा हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूँ, फिर मैं मिलूँगी। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी आत्माओं का, भाई बहनों का ORC में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आशा बहन जी ने कहा कि हमने आपको मीडिया पर्सन्स के तौर पे निमंत्रण नहीं दिया है, परिवार सहित, बाल बच्चों सहित दिया है, पर यह भी है कि मीडिया पर्सन्स को बुलाया है ताकि जो हमारा प्रथम पहलू है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं। आजकल हम अपने प्रोफेशन से, अटेनमेंट से जाने जाते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन उस बात को पीछे रख के प्राथमिक तौर पे जो हम हैं वो इतना शक्तिशाली है कि वो कुछ भी बन सकता है और बना हुआ है, लेकिन उसको इग्नोर करने से, दूसरे पहलू को उभारने से हम बहुत कुछ खो देते हैं, और उसको ना खोएं, यहाँ का भाव ये है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि यहाँ की विशेषता क्या है। बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन एक ये है कि हम ह्यूमन बीइंग में ह्यूमन पार्ट को हम सब जानते हैं, जो हमारा बीइंग पार्ट है उसको यहाँ पर बताया जाता है, और सब एज बीइंग्स हम सोल्स हैं और स्पिरिचुअल एनर्जी हैं, जिसके बारे में आज एक विषय भी है, स्पिरिचुअल वेलनेस। तो वो एक कॉमन डिनोमिनेटर है अमंग ऑल द ह्यूमन बीइंग्स ऑफ द वर्ल्ड, कि हम सोल्स हैं। अगर हम ब्रदरहुड ऑफ मैन, फादरहुड ऑफ मैन एंड वीमेन, एंड फादरहुड ऑफ गॉड की बात करते हैं, तो एक ही डिनोमिनेटर है कि हम सब आत्माएं हैं, वो परमात्मा है। अब उसको प्रैक्टिकली अगर किसी ने लेबोरेटरी ऑफ लाइफ में ट्राई किया है और सक्सेस पाई है, तो ब्रह्मा कुमारी से। आप देख सकते हैं कि 1955 से पब्लिक सेवा ब्रह्मा कुमारी ने शुरू की थी। इतने थोड़े समय में सारे विश्व के सभी कॉन्टिनेंट्स के सभी प्रकार के लोगों में, किसी भी रेस के हों, किसी भी कंट्री के हों, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस के हों, किसी आयु को हों, उनको ब्रह्मा कुमारीज का जो बात है वो अपील की है, और वहाँ विश्व के हर कोने में इनके सेंटर्स एस्टेब्लिश्ड है। यही इस बात को ज़ाहिर करता है। और फिर फ्रॉम ईयर टू ईयर इट इज़ गेटिंग स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। नहीं तो संस्थाएं होती हैं, उसमें कोई स्ट्रक्चर्स होते हैं, ढीले ढाले हो जाते हैं, कोई स्वार्थ होता है, बट यू विल फाइंड ब्रह्मा कुमारीज आर ग्रोइंग। उसकी वजह क्या है? इसकी बेसिक शक्ति है, और जितने ज़्यादा लोग इसमें आते जाते हैं तो दूसरों को भी आता है, वे कुछ तो है, जैसे बहन जी कह रही हैं। वो क्या है? वो भारत की जो एंशेंट मोस्ट विजडम है हमारे देश की, उसको हम लोग रिवाइव कर रहे हैं। आप तो मीडिया पर्सन्स हैं, विजडम से नॉलेज, नॉलेज से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से यूजलेस इंफॉर्मेशन, उसमें हम खोए हुए हैं। तो इसलिए वो क्या था जिसकी वजह से सचमुच हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, जिसके
उस समय की सिविलाइजेशन की मूर्तियाँ केवल मंदिरों में मिलती हैं, हम उनको जाके रेवर करते हैं, पर वो थे कौन? टू मेक इट शॉर्ट, आप देखेंगे कि दुनिया में दो पावर्स होती हैं सबसे बड़ी, एक को कहा जाता है धर्म सत्ता और दूसरी को राज सत्ता। तो जितनी नोन हमारे को इन्फॉर्मेशन है, धर्म सत्ता और राज सत्ता अलग हैं। आप देखेंगे कि पोप हिज होलीनेस है, क्वीन हर हाईनेस है, और दो सत्ताएं इकट्ठी रहें ये संभव नहीं लग रहा लोगों को। बुद्धा जो थे, बुद्धा he was a prince destined to become a king, but he renounced that and got the holiness crown, कि मैं होलीनेस हो गए पर हाईनेस गई। आप गौर करेंगे कि देवी देवताओं के पास दोनों सत्ताएं 2 in 1 था, यानी उनके पास राज सत्ता भी थी, राज सत्ता भी कोई लिमिटेड कंट्री की नहीं थी, विश्व महाराजन थे, और धर्म सत्ता तो स्पिरिचुअल पावर तो इतनी थी कि उनके स्टैचूज़ को भी लोग वॉलंटरीली जाके रेवर करते हैं, कुछ उसको शांति मिलती है। तो आप नॉर्मली भी देख सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति के पास रिसोर्स बहुत है लेकिन उस रिसोर्स को मैनेज करने वाला ठीक नहीं है तो रिसोर्स गलत यूज़ होगा। अगर किसी के पास केवल मैनेज करने वाला ही है, आपके घर में इलेक्ट्रिक करंट है, अप्लायंसेस नहीं है, तो भी किसी काम का नहीं है, तो दोनों चाहिए। तो वो सत्ता हमारे भारतवासियों में थी, बट दैट वाज द ओनली सिविलाइजेशन जिनके अंदर वो थी। वो क्या करते थे उसको हम लोगों ने जीवन में लाया है, और हर एक ने पाया है कि थोड़ी सी इस बात की जानकारी से कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। आपको पता है इमोशनल वेलनेस, होलिस्टिक वेलनेस, फिजिकल वेलनेस, देन मेंटल वेलनेस एंड फाइनली स्पिरिचुअल वेलनेस। तो वेलनेस सचमुच हो जाए तो कोई व्यक्ति कहेगा ही नहीं कि मुझे कुछ चाहिए। तो वेलनेस इज़ आल्सो कंटेजियस, दूसरे को भी पास ऑन होगी। प्रूफ क्या है? एट एवरी ब्रह्मा कुमारी सेंटर, अब यहाँ ये जो सेंटर है वहाँ 130 लोग यहाँ रहते हैं। दे बिलोंग टू डिफरेंट प्रोविंसेस, डिफरेंट कैपेबिलिटीज़, लेकिन आप सारी जगह जाके खुद देख लीजिए, आपको लगेगा ये क्या है, ये तो अजीब बात है, ये परिवार की तरह रहते हैं। और एक जगह नहीं, थ्रू आउट एनीवेयर। और उसके कंट्रास्ट में आप देखेंगे, आप जानते ही हैं, इसलिए वो क्या चीज़ है उसका थोड़ा सा आपको ट्रेलर दिखाया जाएगा, उससे आपको खुद पता लगेगा कि देयर इज़ समथिंग, और उसका थोड़ा सा आपको बताया भी जाएगा ताकि आप उसको ट्राई करके देख सकें अपनी लाइफ में। इतना ही कहना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब एंड थैंक यू दीदी। एंड आई एम श्योर आपने जो अभी वर्ड्स ऑफ विजडम हमारे इतने अनुभवी वर्षों से जो राजयोग मेडिटेशन को अपने जीवन में आपने प्रैक्टिकल उतारा है और इतने अच्छे टिप्स भी दिए और एक हमें एक पाथ भी बताया है कि व्हाट इज़ इट दैट वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस थ्रू आउट द डे विच इज़ अ कंप्लीट वेलनेस, holistic wellness. So thank you so much Bhai Sahib and Didi, and now we will be proceeding with other sessions, but before that I'd like to make an announcement कि यहाँ पर जो बच्चे हैं जो जो आपके साथ kids आए हुए हैं उनका program hall number 6 में चलेगा specially. So if there are any kids or students, please get up and go to hall number 6. And the second request is यहाँ पर जो BK भाई बहन है